हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 11 हिस्ट्री जो है ऑन एम्पायर अक्रॉस द थ्री कॉन्टिनेंट चैप्टर। यानी देखा जाए तो हम यहाँ कक्षा 11वीं का इतिहास करेंगे। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें सिर्फ 12 क्वेश्चन होंगे जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको समझाया जाएगा और ये एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम हर एक बात पे, हर एक टॉपिक के महत्व के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर चीज़ का एनालाइज करेंगे। लेकिन आपको पता है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। According to the chapter on the empire across the three continents, there is a most important question arrive here. What do you know about the Augustus? Explain. There is an important here. What do you know about the Augustus? Who is the Augustus? There is an important question for there. A chapter empire across the three continents here. Augustus was the founder of the Roman Empire. You know that? Who is the Augustus? Augustus was the founder of the Roman Empire. And it is the first emperor ruling from 27 BC until his death in the 14th CE. This is important. There is a empire ruling, there are first. There is a founder of Roman Empire. He was of one Gaius. Gaius Octavius into an old and wealthy Quaestorian branch of Flavian's Octavi family. You know that there is important, the born of Gaius Octavius into the old and wealthy Equatorian branch of Pavilions and Octavius family. There is important. In the 44 BCE, he was adopted to the Postumius in their maternal great uncle Gaius Julius, and the Caesar of flowing. Caesar is Asinations, and together with Mark Antonin, there is a Accurus Lipuda. They formed the second triumvirate. There is a defeated. There are a Caesar of Cassia. There is most important here. Following there is a victory at the Philippines, there are triumvirate, they divided in the Roman Republic among them to the ruled a military director. It is important. And Lepidus was the keep into the exile and the stepper of the position, and Antoninus the committed of suicide. And Flowing is defeated at the Battle of Actium by the Augustus in 31 BC. After the demise of the second triumvirate of Augustus, restored there is the outward of facade of the free republic, and with the governmental power vested in the Roman center, the executive is a magistrates and the legislative assemblies here. You know, it's important, the executive and magistrates and the legislative assembly here. In a relative, however, that it is the autocratic power over to the republic as a military dictator. By the law, Augustus held a collection of power and granted to him for a life by the center, and included supreme military command and those of
tribunes and censor. It's important. It's a look a several years for the Augustus to be devolved their framework within which the formally is republican's state and could be lead under his rule. He rejected to the monarchs his titles and instead to call himself a princeps or civitas and first citizen. That's important. He's a under ruler that rejected their nominative title and himself a princeps of civitatis is a first citizen. The meaning here. The resulting constitutional framework become now as the Principate, the first phase of Roman Empire. हम यहाँ कर रहे हैं 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके अंतर्गत अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है कई मायने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ का निर्माण जो होता है कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी समय काल में करता है। हम यहाँ पर रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रोमन एम्पायर तो है, लेकिन रोमन एम्पायर की स्थापना किसने की, रोमन एम्पायर जो है कैसे जो है फला फूला और कैसे इसका विकास हुआ, ये बहुत से प्रश्न हैं। लेकिन जनरल सी बात जो है ये क्वेश्चन आपका सभी आंसरों का जो है बखूबी आंसर दे देगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही यही है कि आप अगस्टस के बारे में क्या जानते हैं, कौन अगस्टस है और अगस्टस था कौन, और इसका इस क्वेश्चन में क्यों त्रिपाण स्टडी सेंटर ने सिलेक्ट किया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात है। अगर क्वेश्चन में कुछ खास है तभी यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर ने इसको सिलेक्ट किया है कि अगस्टस कौन था, अगस्टस के बारे में आप क्या जानते हो। तो जर्नल सी बात है, अगर हम आंसर की तरफ अपना रुख करें तो अगस्टस रोमन साम्राज्य का स्थापक है। अगस्टस कौन है, रोमन साम्राज्य का स्थापक है, यानी वो पहला व्यक्ति है जिसने रोमन साम्राज्य का स्थापना किया, उसका पहला सम्राट था वो, जिसने 27 ईसा पूर्व से लेके 14 ईस्वी पूर्व में अपनी मृत्यु तक शासन किया। काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल है जब तक इसने यहाँ पर राज्य किया, और ये पहला व्यक्ति था जिसने रोमन साम्राज्य का स्थापना किया। उनका जन्म जो था गयूस एक्टोवियस के रूप में प्लेवियंस एक्टोवियस परिवार की एक पुरानी और धनी अश्वरोहित शाखा में हुआ, यानी इनका जन्म जो है गयूस एक्टोवियस के रूप में जो है प्लेवियंस एक्टोवियस परिवार की एक पुरानी और धनी शाखाओं में हुआ। और 44 ईसा पूर्व में सीजर की हत्या के बाद उनके मामा गयूस जूलियस सीजर ने उन्हें जो है मरणोपरांत गोद ले लिया, यानी इनका जो है मामा ने इनको गोद लिया मरणोपरांत तक, यानी जब तक वो जिंदा रहे तब तक ये जो उनके पुत्र के रूप में संहित रहे। मार्क एंटीना और मार्कस जो लेपिडस के साथ मिलकर उन्होंने सीजर के हत्यारों को हराने के लिए दूसरी तिकड़ी का गठन किया। यानी देखा जाए तो यहाँ अगस्टस रुके नहीं, अगस्टस ने उनके जो मामा के हत्यारे थे सीजर के हत्यारों को हराने के लिए उसने दूसरी तिकड़ी का गठन किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण शासन की तरफ यहाँ इशारा करता है। लिबियो में अपनी जीत के बाद जो है त्रियवेरेट ने रोमन साम्राज्य को उनके बीच विभाजित कर दिया और सैन्य तनाशाह के रूप में शासन किया। तो फिलिपी में अपनी जीत के बाद जो है त्रियवेरेट को रोमन साम्राज्य को उनके बीच विभाजित करके जो है तनाशाह के रूप में शासित किया, और लेपिडस और निर्वासन में रखा गया, उसका पद छीन लिया गया। और 31 ईसा पूर्व में जो अगस्टस द्वारा एक्टियम्स की लड़ाई में अपनी हार के बाद एंटनी ने आत्महत्या कर ली। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। 31 ईसा पूर्व में जो है अगस्टस द्वारा एक्टियम्स की लड़ाई में अपनी हार के बाद एंटनी ने आत्महत्या कर ली, और द्वितीय त्रिमूर्ति के निधन के बाद अगस्टस ने स्वतंत्र गणराज्य की बाहरी पहलू को बहाल किया, जिसमें सरकारी शक्ति रोमन सीनेट, कार्यकारी जो है मजिस्ट्रेट और विधानसभाओं में निहित थी। अब देखिए उस समय जो है विधानसभाओं की जो है शाखाओं में परिवर्तन किया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। हालांकि वास्तव में उन्होंने एक सैन्य तनाशाह के रूप में गणराज्य पर अपनी निरंकुशता शक्ति बरकरार रखी। यानी देखा जाए तो यहाँ तनाशाह निरंकुश शक्ति के रूप में अपनी शक्ति को इन्होंने जो है अगस्टस ने कायम रखा। कानून के अनुसार अगस्टस के पास सीनेट द्वारा जीवन भर के लिए दी गई शक्तियों का एक संग्रह था, जिसमें सुरक्षा, सैन्य कमान और
ट्रिविजन्स और सेंसर शामिल थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। अगस्टस को यह जो है ढांचा विकसित करने में कई साल लग गए, यानी अगस्टस के इन प्रयासों में काफ़ी समय लगा, क्योंकि रोमन साम्राज्य को गठन करना आम बात नहीं था, जिसके तहत उसके शासन के तहत औपचारिक रूप से जो है गणतंत्रात्मक राज्य का नेतृत्व भी किया जा सके। उन्होंने राजशाही उपाधियों को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय खुद को जो है प्रिंसेप्स सिविलिटियस यानी प्रथम नागरिक कहलाने में उनको काफ़ी दिलचस्पी रहा। यानी उन्होंने अपने आप को जो है राजशाही उपाधि को त्याग करके प्रथम नागरिक के रूप में अपने आप को प्रचलित किया। परिणामी संवैधानिक ढांचों को रोमन साम्राज्य के पहले चरण जो है प्रिंसिपेट के रूप में जाना जाने लग गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़रूरी भी है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है अगस्टस कौन थे और अगस्टस कितनी महत्वपूर्ण यहाँ पर रोमन साम्राज्य के जो है डेवलपमेंट में योगदान दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी रूप में, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है और नोट करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो जर्नल सी बात है, सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए।